person on whom settlement and awards are binding. देखिए सेटलमेंट और अवार्ड के बारे में हमने पढ़ा दैट सेटलमेंट जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के सामने जाता है और अवार्ड जो है आपका आर्बिट्रेशन या ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट ये देता है. Basic difference between the settlement and award are or is, this is a single difference, that the settlement comes between the mutual talk between the parties, right? And if the both the parties to the dispute who are sitting before the conciliation officer or conciliation board, they are mutually agreed on some point, then it is known as settlement between the parties. However, award passed by the any other authority, that is a quasi-judicial board, though either of the party is not very much comfortable, not satisfied with the award of a tribunal, ऐसे condition में you have to accept the award because it's adjudication by the tribunal. But once you are receiving the same, आपको लिखना पड़ता है that under protest. Okay, I am accepting this under protest. This is the main difference. अब आते हैं कि ये किस पे बाइंडिंग होगा. बहुत जनरल सा टर्म है. जो पार्टी डिस्प्यूट में होंगी उन्हीं पे बॉन्डिंग होगा ये, राइट? जिससे रिलेटेड है ये मैटर, जो आदमी कोर्ट के सामने गया उन्हीं से बॉन्डिंग होगा. ऐसा तो नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर है तो स्ट्रेंजर का इससे कोई लेना देना नहीं. ओके, तो parties to the dispute who referred or whose dispute is referred by the appropriate government or who themselves referred their dispute to the appropriate authority, they are the only one before whom this award or settlement are binding. Settlement के लिए थोड़ा सा अलग है. The person, the party who are executing or executing the settlement instrument. बात आ रही है समझ में? इन्हीं लोगों पर ये अवार्ड और सेटलमेंट बाइंडिंग होगा. ओके, स्ट्रेंजर का कोई लेना देना नहीं. जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, stranger to the contract cannot sue or to be sued. The one who are not entered into any kind of a contract, then he is not liable for any duty, he is not liable for any compensation. If the tort committed by any person and by his tort the other person sustain loss, so it is the matter between that person and this person. Any stranger is not liable, right? For example, if Mr. A is a workman in the industry and Mr. B is the boss, that is the employer, if any dispute arose between only Mr. A and Mr. B, and whatever the order, whatever the award, or whatever the settlement on which they both arrive, that all are binding to that two person. Mr. C, who is the another workman, वो मिस्टर ए के लिए पास हुए ऑर्डर को खुद के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकता कि सर आपने उसको इतना दिया तो मुझे भी उतना ही दीजिए. नो, because this is only binding to the those person who are parties to the dispute. Those who are not parties to the dispute, the award and settlement are not binding.
Settlement means settlement is arrived at the course of a conciliation proceeding. कंसिलिएशन ऑफिसर और कंसिलिएशन बोर्ड के बारे में आपने देखा था, जब उन दोनों की वो काउंसलिंग करता है, दोनों को ये समझाता है कि ना आपका जाना ठीक है कोर्ट में, ना आपका जाना ठीक है, और दोनों को समझाने के बाद वो एक रास्ते पे लेके आ, उसको आप कहते हैं सेटलमेंट. ओके, एंड इंक्लूड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर and workmen arrive otherwise than in a course of conciliation proceeding. As we discussed earlier, any complaint, any grievance before any of the authority as mentioned in IDA, that is Industrial Dispute Act, it must be in writing. So when the start of a dispute to be represented before any of the authority is on writing, then the end of a proceeding should be on writing. What are their conditions? What are their terms? It should be on a writing. Without writing, it is not admissible at all. ठीक है, तो कोई भी सेटलमेंट टॉक अगर इन दोनों के बीच में चलती है, ठीक है, तो वो राइटिंग में होनी चाहिए. अगर राइटिंग में नहीं है तो फिर उसका कोई यूज नहीं होता. तो बी केयरफुल, बिकॉज यू आर ऑल्सो और यू विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग. क्योंकि ये जितने भी सेटलमेंट टॉक बनाते हैं, हो सकता है कई बार आप ही इसमें वो हो जाए, पार्टी हो जाए. ठीक है, और आप पार्टी होंगे या फिर आप अगर आर्बिट्रेटर हैं, तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि देयर शुड नॉट बी एनीथिंग इन ओरल बिफोर एनी ऑफ द अथॉरिटी. ओरल सिर्फ एक ही चीज कोर्ट में चलती है, वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट, बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट जो डॉक्यूमेंट और एविडेंस आप प्रोड्यूस करते हैं. एविडेंस और डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आप आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो आर्ग्यूमेंट आपका, और उसमें भी इफ यू आर वेरी केयरफुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डूइंग एन आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर जाती है. जज साहब है या आप है, कि आर्ग्यूमेंट लेंदी होती है. ठीक है, और लेंदी आर्ग्यूमेंट के समय बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे मिस कर जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको राइटिंग में भी आर्ग्यूमेंट बना के लेके जाना चाहिए. राइटिंग में जब आप आर्ग्यूमेंट बना के अपने लेके जाते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर यू. रीजन, सपोज वहां पे जो प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट का कामकाज इतना भी इजी नहीं होता है. प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग में कई बार कुछ पॉइंट आपने बोले, देयर आर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर कि उस पॉइंट पे क्लिक नहीं हुआ रिलेटेड बेंच को, तो ऐसे में वो पॉइंट मिस हो जाता है. और सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपके की पॉइंट रहते हैं. तो इट्स बेटर कि जो आप आर्ग्यूमेंट करते भी हैं या जो करने वाले हैं, उसको राइटिंग में बना के लेके जाइए. एंड इट इज परमिसिबल अंडर अ प्रैक्टिस which is known as written notes of argument. It's a good practice. उसके पीछे का रीजन यही होता है कि रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जब आप बना के जाते हैं, तो आप वो चीजें कोर्ट में दिखा सकते हैं, और आपके आर्ग्यूमेंट के बाद भी कोर्ट उसका रेफर कर सकता है. जब भी ऑर्डर के लिए बैठेंगे, एडजुडिकेशन के लिए वो प्रिस्क्राइब बेंच बैठेगी, तो वो आपके ऑर्डर को, आपकी चीजों को पढ़ती है. और जब आर्ग्यूमेंट आपका राइटिंग में होगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है. ओके, तो ये उसका एक बेसिक डिफरेंस है. और वही चीज यहाँ पर है कि जो सेटलमेंट आता है, इट शुड बी इन राइटिंग. ओके, सो दिस इज द सेटलमेंट. अब अवार्ड पे आते हैं.
award that under section 2 subsection B, and award means the interim or final determination. As I told you on a last lecture, whenever the proceeding is pending before any court of law, but you require an interim relief relating to your grievance, you move an application for interim relief and the court passes or adjudicated on that point. और वो जो ऑर्डर देता है उसको ऑर्डर कहते हैं. इट इज नॉट अ फाइनलिटी ऑफ अ प्रोसीडिंग. ओके, फाइनलिटी ऑफ अ प्रोसीडिंग कब होती है? जब आपका अवार्ड फाइनल हो जाए, एडजुडिकेशन खत्म हो जाए. अदरवाइज वो ऑर्डर कहलाता है. ठीक है, अदरवाइज वो सिर्फ ऑर्डर कहलाता है. तो एनी ऑफ द इंटरिम एप्लीकेशन व्हिच इज डिसाइडेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, concerned court, is known as interim order. It is not known as award, decree or judgment. ठीक है, अवार्ड, डिक्री और जजमेंट तब पास होता है जब आपका फाइनल एडजुडिकेशन हो जाए. मींस अब उसके खिलाफ या उस समय उस प्रोसीडिंग में कुछ नहीं बचा. एंड ऑफ अ जस्टिस. ठीक है, अगर ये चीजें नहीं होती देन आपके लिए ये वो टेंशन आता है और आपका अवार्ड नहीं, आपका ऑर्डर पास होता है. ठीक है, अब इस सेकंड आपका थर्ड पॉइंट आता है सेटलमेंट एंड अवार्ड. ऑन होम बाइंडिंग, एज वी डिस्कस अर्लियर, द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, जो कोर्ट के सामने हैं, जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग के सामने हैं, जो काउंसिलिंग ऑफिसर के सामने हैं, और जो साइन कर रहे हैं, जो आर्बिट्रेशन के सामने हैं, उन्हीं पे ये बाउंड होगा. आर्बिट्रेशन अवार्ड को भी अगर आपने अंडर प्रोटेस्ट करके साइन नहीं किया तो ये आप पे बाउंडेशन है. अगर आपको वो आर्बिट्रेशन अवार्ड से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा. राइट, लिखने के बाद ही आप वो चीज आगे कर सकते हैं. अदरवाइज आपको वो अवार्ड बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है, और तीसरा होता है जब आप सेटलमेंट प्रोसीडिंग खुद साइन कर रहे हैं, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोअर्सन, विदाउट एनी फॉल्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. ऐसे में आपका साइन किया हुआ फ्री विल से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपके लिए इनफोर्सेबल हो जाएगा. ठीक है, आप अपनी विल से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनफोर्सेबल है, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज पे ध्यान ना देकर आपने साइन कर लिया बट आपको लगता है कि नहीं ये आर्बिट्रेशन अवार्ड मेरे लिए यूजफुल नहीं है या कहीं ना कहीं बायस्ड है, ऐसे में आप उसको अंडर प्रोटेस्ट लिखिए. बट इफ यू फॉरगेट टू मेंशन अंडर प्रोटेस्ट देन आपने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, एंड दैट इज नोन एज वेवर. आप अपने हक को छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं वेव कर दिया. आई बात समझ में? तो अपने हक को चाहे जिद करिए, चाहे लड़ाई करिए, लेकिन अपने हक को लेना जरूरी है. ओके, और अगर आपने बोला ठीक है जाने दो, तो दैट मीन्स जो आपका राइट है वो राइट आपने खो दिया, which is known as waiver और waiving of your right. क्लियर? चलिए अब आते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट अदरवाइज देन इन अ कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में आपका सेटलमेंट होता है वो हमने देख लिया. ठीक है, लेकिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के अलावा भी सेटलमेंट होता है. कैसे होता है? जो मैंने आपको कल बताया कि अगर आपके बीच में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई डिस्प्यूट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ चल रहा है और
उसके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में कई बार होता है कि बातचीत हो जाती है और सेटलमेंट पे आ जाते हैं, और आप उस कंसर्न कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि सर वी आर रेडी टू सेटल अवर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, काइंडली ग्रांट अस अ शॉर्ट टाइम। ऐसे में कोर्ट आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप बाहर निपटा लो, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता कि डिस्प्यूट हो। और मार्क माय वर्ड, जो अच्छे एडवोकेट होते हैं वो भी नहीं चाहते कि डिस्प्यूट हो। बहुत सारे आपको मिलेंगे, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा है कि बहुत सारे मिलेंगे जहां पे डिस्प्यूट नहीं भी है तो भी, ठीक है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होने वाली चीज नहीं है और फिर भी उसको क्रिएट कर दे, बाद में आपको रियलाइज होता है नहीं यार ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने बना ली, ऐसे में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको आप रोक के आप सेटलमेंट पे चले जाते हैं और आप उस कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करते हैं दैट वी आर ट्राइंग टू सेटल अवर डिस्प्यूट विद द म्यूचुअल कन्वर्सेशन। ठीक है, इसमें आपको म्यूचुअल कन्वर्सेशन से आप सेटलमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। तो यही होता है अदरवाइज देन इन अ कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। ठीक है, तो एंड सेटलमेंट अराइव बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, otherwise then in a course of conciliation proceeding is binding on the parties to the agreement. If you are agreed to enter into any kind of agreement, ठीक है, तो ऐसे में आपने फ्री विल फ्री कंसेंट से साइन किया। ठीक है, जब फ्री विल और फ्री कंसेंट से साइन करते हैं तो ऐसे में आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, और आप, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी आपने देखा है, वन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन बाय द बोथ पार्टीज, दोनों अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं, तो पीछे क्यों हटेंगे वो? और अगर पीछे हटते हैं तो इसका मतलब आपने जो साइन किया, कई बार होता है कि एम्प्लॉयर के चक्कर में आदमी डर के साइन कर देता है। अक्सर कई बार एम्प्लॉय बोलता है कि यहाँ पे जो मैंने साइन किया था इसने डरा के धमका के कर लिया। चलो उस समय डरा धमका के कर भी लिया, तो क्या आपने बाद में उसकी कंप्लेंट की? नहीं की। ठीक है, अब बाद में अगर आप कंप्लेंट ना करें तो फिर ये कोई मीनिंग नहीं बचेगी आगे। ठीक है, ये कोई मीनिंग नहीं बचता। रीजन क्या होता है कि अगर उस समय आपको धमकाया गया है, उस समय आपने कोई भी चीज अंडर प्रेशर की है, तो बाद में कभी ना कभी तो चांस आपको मिलेगा कि किसी ना किसी को तो आप बोलेंगे कि ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ ये गलत तरीके से साइन हुआ, मेरे ऊपर फोर्स था, मेरे ऊपर प्रेशर था, वो मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई भी मीनिंग नहीं बचता। ओके, तो जो भी साइन कर रहा है सेटलमेंट एग्रीमेंट को, वो इस अवार्ड के लिए बाउंड है और वो सेटलमेंट उस पर बाउंडिंग है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र where there is a recognized union for undertaking such an agreement, not being an agreement is respect of dismissal, discharge, removal, retrenchment, termination of a service or suspension is to be arrived at between the employer and recognized union only. सिर्फ यही लोग होते हैं जिनके बीच में ये आपकी डिस्प्यूट क्रिएट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था और शुरू से आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं कि आप इन सारी चीजों पर, ये जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, इन सारी चीजों पर आप कोई भी चीज कोई भी मैटर डिस्प्यूट लेके आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट लेके आप कोर्ट में क्यों जाते हैं? अगर आपको रिट्रेंचमेंट किया हो, आपको टर्मिनेट किया हो, ठीक है, इन सारी बातों पर आप कोर्ट में पहुंचते हैं। और अगर वहां पे यूनियन है आपकी, ठीक है, यूनियन होने के बाद आपको ये सारी चीजों को फिर से आपको रिप्रेजेंट करेगी वो यूनियन,
याद रखिएगा, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एनी यूनियन देन यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन बाय द कोर्ट और बाय द एम्प्लॉयर। जो भी बात होगी वो आपके यूनियन लीडर के थ्रू ही होगी, ठीक है। So this is the settlement by the agreement, otherwise than in a course of conciliation proceeding. Arbitration award section 18 subsection 2. Arbitration award किसको कहा जाता है? Once the you refer your matter before the arbitrator, ठीक है, और आर्बिट्रेटर के पास ये मैटर रेफर होने के बाद आप इन चीजों को प्रोसीडिंग चलती है। आर्बिट्रेशन के पास फिर से सेम चीज, सेम तरीका, आप अपने अपने सेटलमेंट टॉक रखते हैं, दोनों के बीच में म्यूचुअल डिस्कशन चलता है। डिस्कशन के बाद अगर आर्बिट्रेशन के सामने आप दोनों को लगता है कि यस आवर सेटलमेंट इज ओके, देन आप उस सेटलमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आर्बिट्रेशन के सामने सेटलमेंट हो ही जाता है। लेकिन वॉइस वर्सा कई बार ये होता है कि आर्बिट्रेशन के सामने ये सेटलमेंट आपका नहीं भी हो पाता। दोनों चीजें आती है। आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होता है, अगर दोनों पार्टीज की मर्जी से अपॉइंट हो रहा है तो ये आर्बिट्रेशन आपका ठीक है। लेकिन अगर दोनों पार्टी की मर्जी से नहीं हो रहा है, कई बार आर्बिट्रेटर भी बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि किसी ना किसी फर्म से, किसी ना किसी कंपनी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और आइदर ऑफ द पार्टी को लगता है कि नहीं यार इसने वो प्रॉपर अवार्ड नहीं दिया हमें, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये अवार्ड बिल्कुल सही है, इतना ही होना चाहिए था, तो ऐसे में आप उसको चैलेंज नहीं करते। आप दोनों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पार्टी टू द डिस्प्यूट एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब अगर आपने एग्जीक्यूट किया है उसको, तो नाउ इट इज बाइंडिंग ऑन यू, आपने एक्सेप्ट किया उसको। ओके, और जब आप एक्सेप्ट करते हैं अब आपको बाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते, क्योंकि आर्बिट्रेशन के बारे में एक सिंपल सी चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि इसके अवार्ड, इसके जो अवार्ड होते हैं या इसका जो पावर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस अरे क्वासी जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल होने का मतलब ये नहीं होता, उसके भी चीजें उतनी ही बाइंडिंग है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है ना। अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो कोई यूज नहीं है, तो बाइंडिंग भी उतना ही होता है। ओके, तो अब आप इसको पीछे नहीं हट सकते। उसका एक की पॉइंट मैंने आपको बताया, आगे जब फ्यूचर में आप आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पढ़ेंगे, वो पूरा एक्ट है, तो उसमें बाकी और उसकी प्रोसीडिंग के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका आता है सेटलमेंट अराइव इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन अवार्ड, और थर्ड वन अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पे तो कोर्ट एडजुडिकेशन करके करता है, ठीक है। एडजुडिकेशन होने के बाद ही ये सारी चीजें आपकी आती हैं। अब एडजुडिकेशन होने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आपको उसको मानना ही है, अदरवाइज आप पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लग जाएगी। एनीथिंग ऑर्डर, एनीथिंग, एनी अवार्ड, any judgment, any decree passed by court, if you are not obeying the same, you are not performing as per the decree, order or award, then it amount to contempt of court। और बड़ा सीरियस नेचर का होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। कोर्ट स्पेशली बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री ये एक बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से ज्यादा अगर आप जाते हैं, अगर आप कोर्ट की बात कोई नहीं मानेंगे, अरे जाने दो, तो फिर ये इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर को आप डिनाई नहीं कर सकते। यस, देयर इज अपीलेट अथॉरिटी,
ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी होती है, आप वहां पे जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैटर अपील में भी है तो आप उस पर डिस्कशन और डिबेट करें, नो। और वंस द ऑर्डर इज फाइनल, वंस द डिक्री पास, वंस द जजमेंट गिवन बाय द अपेक्स कोर्ट, देन तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये सारी चीजों को अगर आप एक लेवल पे लेके आते हैं तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल लाने के लिए, और ये होता है एक बहुत अच्छा, अभी फ्रेज मैंने पढ़ा, आप महान हो, तो वो महानता कोर्ट को दिखानी पड़ती है कि आपने जो बोला हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आप उसमें अलग जाते हैं, डेविएट करते हैं, तो इट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। चलिए, तो लेबर कोर्ट ट्राइब्यूनल ये भी जो भी आपको अवार्ड देता है, अवार्ड पास करता है, ये आप सबके लिए फाउंडेशन है, आपको वो अवार्ड लेना ही पड़ेगा। किस पे बाइंडिंग होता है? ऑल पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जितनी पार्टीज हैं उन सबके ऊपर, ठीक है। मींस जितने लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ इंडस्ट्री में, उनके बीच ऑल अदर पार्टीज समन टू द अपीयर। अब उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पावर है तो उनको समन भी जाता है, समन देने का पावर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं हूं, मेरे लिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको समन दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नमिता मैम कैमरा ऑन करिए, तो ये समन गया, और अब आप इसमें बाइंडिंग है, सो दिस ऑर्डर, दिस स्टैंडिंग ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन यू, राइट। इसमें आप पलट नहीं सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, और आपके पास चांसेस नहीं होता। अपीलेट अथॉरिटी इज देयर, यू मे गो टू द हायर अथॉरिटी, बट जब तक अपीलेट अथॉरिटी मेरे इस ऑर्डर पे स्टे ना लगा दे तब तक ये आप पे बाइंडिंग रहेगा। सेम चीज, लोकल कोर्ट ने आपको ऑर्डर पास किया, अब आपको नहीं पसंद आ रहा है, दुनिया भर की आप शोर मचा रहे हैं, बट वो इन्फोर्सिएबल है तब तक जब तक उसकी अपर अथॉरिटी उस पर स्टे ना लगा दे, ओके। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज इट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप सब पे ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि बाइंडिंग होने का मतलब ये अवार्ड, ये ऑर्डर, ये उन्हीं पे बाइंडिंग है जो मैटर टू द डिस्प्यूट है, अदरवाइज नहीं। स्ट्रेंजर टू द पार्टी, उनको आप घसीट नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को, किसी को वार्न करता हूं, तो इट्स अ मैटर बिटवीन मी एज अ अथॉरिटी और वो जिस स्टूडेंट को मैंने बोला। तीसरे आदमी को चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, तीसरा आदमी चौधरी बनता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान करता है, ओके। तो यहाँ पे भी अवार्ड बाइंडिंग उन्हीं पे होता है जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं तो वो अनलॉफुल है, आप किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल रिप्रेजेंटेटिव आपने अपॉइंट ना कर दिया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें आ जाता है। जिनको जिनको समन निकाले गए वो उनके लिए भी बाउंडिंग है ये, ठीक है। उसके बाद वेयर अ पार्टी रिफर टू द क्लॉज ए एंड बी इज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की डेथ होने के बाद उसके सक्सेसर, उसके हेयर्स, हेयर्स ये वाले नहीं, लीगल हेयर, ठीक है। जो आप बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसा, ठीक है। वो हेयर्स, सक्सेसर, असाइनी, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया कि रिप्रेजेंट मी इन दिस मैटर, या यू आर अ सुपरवाइजर रिप्रेजेंट मी, इन सब पे ये अवार्ड बाइंडिंग होता है। वर्कमैन के लिए, वर्कमैन खुद या सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, या फिर उनकी ट्रेड यूनियन,
एम्प्लॉयर के बाहर जाकर किसी भी वर्कमैन के लिए आपको ये अवार्ड बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर 1-on-1 चल रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज सारे लोगों के लिए बाउंडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कमैन जाता है, वर्किंग आवर मुझे 8 से 6 का जो आपके कंपनी का है उसको लेके उसकी लड़ाई होती है, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं 8 to 6 इज ओके, नाउ इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ द एम्प्लॉई। आप ये नहीं बोल सकते सर मैं तो पार्टी टू द डिस्प्यूट नहीं था तो मेरे ऊपर क्यों। नो, कोर्ट ने एडजुडिकेट किया है वर्कमैन की कंडीशन को देखकर, ना कि उस पर्सनल आदमी की कंडीशन को देखकर, तो वहां पे टाइटल है वर्कमैन। गॉट माय पॉइंट? So these are the terms and conditions where the arbitral award is binding on the parties. सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया था। The Supreme Court has laid down the test of determining whether the transferee is a successor or assignee for the above purpose. The three test is applied. Whether the whole business is purchased by the transferee. For example, Mr. A की कंपनी है, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन मिस्टर ए ने ये पूरे कंपनी के पूरे शेयर मिस्टर बी को बेच दिए और मिस्टर बी की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। ऐसे में अब आपका जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं जो ट्रांसफरी है। अब वो ये नहीं बोल सकता क्योंकि फैक्ट्री आपने पूरी खरीदी है तो फैक्ट्री के साथ साथ आप उसके जितने टेंशन्स हैं वो भी तो खरीद रहे हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि मालिक चेंज हो गया डिस्प्यूट खत्म, ऐसा नहीं होगा। जो 10 साल 15 साल से केस लड़ रहे हैं उनका क्या? तो जो नया बैठेगा उस कुर्सी पर अब वो ये चीज देखेगा। और जब इस बात पे डिसएग्रीमेंट बढ़ा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना पड़ा, गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। क्या क्या गाइडलाइन है? वेदर द होल बिजनेस वाज परचेज बाय द ट्रांसफरी, पूरा बिजनेस खरीदा, आगे की सारी चीजें भी आपको लेनी पड़ेंगी। वेदर द बिजनेस वाज कैरिड ऑन एट द सेम प्लेस इवन आफ्टर द परचेज, उसी जगह पे चल रहा होगा वो बिजनेस तो आपको लेना पड़ेगा। वेदर द बिजनेस वाज परचेज ऑन गोइंग कंसर्न, जो चल रहा है मैटर उसको लेकर खरीदा गया। वेदर द नेचर ऑफ द बिजनेस वाज द सेम नेचर है, टेक ओवर किया आपने तो आपको इन वर्कमैन को भी अपने आप ही वो आपके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, आप अपने आप ही उसके बॉस बन जाते हैं। वेदर द गुडविल ऑफ अ कंपनी ऑल्सो परचेज, गुडविल आपको पता है, गुडविल ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है लेकिन मार्केट वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू जिसको आप कहते हैं, वो ब्रांड पे ही सारी चीजें बिक जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है whether there was a continuity of a business or if there was a break, what the length of such break was. कई बार टेक ओवर करने के बाद नए तरीके से काम शुरू करने के लिए ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। अब उस नए तरीके से काम शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और उस टाइम को ब्रेक बोलते हैं। नया सेटअप बैठाना है, ठीक है, नया सेटअप बैठाने के लिए आपको नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नई उसकी तैयारी, नए वर्कमैन को मर्ज करना है, इन सारी स्पेशली ये मर्जर में होता है, ठीक है, कि जब आप एक कंपनी को दूसरे कंपनी में मर्ज करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो जो एग्जिस्टेंस कंपनी है इनके काम करने का तरीका अलग होता है, आपने काम टेक ओवर किया है तो आपके काम करने का तरीका अलग होगा। इन सारी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, बट इट डजंट मीन इट्स अ शटिंग डाउन ऑफ अ बिजनेस। वो ले ऑफ में आ सकता है, लॉकडाउन में नहीं, लॉकआउट तो बिल्कुल नहीं। ले ऑफ का पीरियड उसको आप मान सकते हैं जहां पे अनअवेलेबिलिटी है, एम्प्लॉयर आपको काम देना चाहता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अनअवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ सेटअप। वंस द सेटअप इज डन बाकी चीजें चालू हो जाती हैं, ओके। और उसके बाद फाइनल वाला आता है आपका छठवां जो दिया है, दैट if the purchaser had bought some part of a business
whether he had added some new part and it started a similar business, though not the old one. सिमिलर बिजनेस कर रहा है, ओल्ड वन को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उसने टेक ओवर तो लिया है। तो वहां पे जितने एम्प्लॉयज थे, जितने वर्कमैन थे, वो यहाँ पे अपने आप कंटिन्यू हो जाएंगे। अदरवाइज उनकी जस्टिस के लिए प्रॉब्लम आएगी, उनके ब्रेड एंड बटर के लिए प्रॉब्लम आएगी। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी covers the past and future workmen irrespective of whether workmen are member of a union which was a party to the dispute. All persons employed in a particular industry are covered by this clause. Suppose मान लेते हैं एक इंडस्ट्री है ए नाम की, वहां पे 130 वर्कमैन काम करते हैं, 100 लोग यूनियन में हैं, 30 लोग यूनियन में नहीं भी हैं। कंपनी बी ने टेक ओवर कर लिया कंपनी ए को। अब डिस्प्यूट हुआ कि भैया हमें भी रखिए काम पर, तो जो उसकी लेबर यूनियन थी, इन्होंने कंपनी बी पे केस, लेबर यूनियन 100 को ही रिप्रेजेंट कर रही है, बराबर। और अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि नहीं, कंपनी बी को कंपनी ए के मजदूरों को भी अपने साथ काम देना पड़ेगा, तो ये सिर्फ उन 100 लोगों पे नहीं होगा, पूरे 130 पे होगा। भले ही केस लड़ा लेबर यूनियन ने, बट यहां पर वो पूरी इंडस्ट्री के लेबर्स के लिए है। तो जो पार्टी टू द डिस्प्यूट नहीं था, उनपे भी इन्फोर्सेबल होगा ये ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। बात आई समझ में? तो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनपे तो है ही है, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उनपे भी है, क्योंकि ये ऑर्डर द इंडस्ट्री के लेबर्स पे आया है। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये यूनियन में नहीं था तो इसको आप जॉब नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। बट यूनियन में रहने पर आपकी बहुत सारी चीजें, अगर पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, तो पर्सनल ग्रीवेंसेस को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ अ वर्डिंग ऑफ क्लॉज सी, ठीक है, तो ऐसे में all person who are employed and all person who are subsequently become employed means एक ऑर्डर कोर्ट ने आपको पास किया कि आप अपने यहाँ पर जितने आपके एम्प्लॉय आएंगे, जितने आपके वर्कमैन हैं, उनको आप ड्रेस देंगे कंपनी की, ठीक है, सारे लेबर्स को एम्प्लॉय देगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर देगा, सॉरी, अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग किस पे है? जो आगे आने वाले, जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, आज ज्वाइन नहीं किया लेकिन फ्यूचर में तो ज्वाइन करेंगे ना, तो ये फ्यूचर एम्प्लॉइज के लिए भी आज का डिसीजन बाउंडिंग होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एम्प्लॉय। जो आज नहीं है लेकिन आगे तो ज्वाइन करेंगे, तो आज दिया हुआ डिसीजन उन पे लागू होगा। ओके, ये एक आपका फ्यूचर एम्प्लॉय के लिए भी सारे ऑर्डर आपके कंपल्सरी इन नेचर होते हैं। तो ऑल पर्सन हु आर सब्सिक्वेंटली बिकम एम्प्लॉयड, इफ the legislature has intended only to those persons who are fall within the meaning of the term workman to be covered, it would have used the word workman instead of using all person. अगर उस समय के लिए खाली है, डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट उस समय का चल रहा है, तो आप खाली वर्कमैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल पर्सन्स अगर आपने ले लिया तो फ्यूचर एम्प्लॉय भी आपके उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर पास्ट एंड फ्यूचर वर्कमैन, जो इन सारी चीजों में आते हैं। अब आते हैं पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट एंड अवॉर्ड, सेक्शन 19। ये जो सेटलमेंट और अवॉर्ड है, ये कब तक ऑपरेट है? कल हमने देखा था इन्फोर्समेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है, कि एक अवॉर्ड इन्फोर्समेंट में कब आता है और ऑपरेशन में कब आता है? इन्फोर्समेंट में आता है when it is published by the appropriate government, 1 month का पीरियड
सेक्शन 17 1 मंथ का पीरियड, और उसके बाद ये इन्फोर्स होगा ऑपरेशन पे। इन्फोर्समेंट तो हो गया, लेकिन अब उसका यूज कब करना है आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई क्रिकेट की बात करते हैं, टेस्ट मैच में आपको 60 ओवर के बाद न्यू बॉल अवेलेबल हो जाती है, 60 ओवर के बाद होती है न्यू बॉल अवेलेबल। दैट मीन्स इन्फोर्समेंट आपका 60 ओवर के बाद है, लेकिन अब वो बॉल को आप क्लेम कब कर रहे हैं, हो सकता है 70 ओवर में करें, हो सकता है 80 ओवर में करें, वो होता है ऑपरेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल घर पे आपकी मम्मी ने खाना बना दिया, खाना बना के रेडी हो गया, वो हो गया इन्फोर्समेंट। आप खा कब रहे हैं, वो आता है ऑपरेशन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फोर्समेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, बैठे बैठे कोई चीज नहीं हो जाती। इन्फोर्समेंट के लिए 1 महीने का टाइम होता है, पब्लिकेशन हुआ 1 महीना रुकिए, हो सकता है कोई अपील करना चाह रहा हो सकता है किसी और को कोई काम हो सकता है उसमें अल्ट्रेशन करना हो। तो ये सारी चीजों को आपको टाइम देना होता है, ठीक है। सो पीरियड ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट एंड अवॉर्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अवॉर्ड एंड सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, settlement comes into the operation on such a date as is agreed by the parties to the dispute। भाई ये तो सेटलमेंट है, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय के बीच में कोई टेंशन हुआ, दोनों ने आपस से सेटलमेंट किया, जो भी सेटलमेंट है वो कब से लागू होगा, इन्फोर्समेंट कब से होगा, ये भी तो वही दोनों पार्टियां डिसाइड करेंगी, ओके। और उसके बाद इफ नो डेट इज एग्रीड अपॉन द डेट ऑन विच मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज executed by the party to the dispute। तो सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट दोनों पार्टियां जब एग्जीक्यूट कर रही हैं, अपना अपना एग्जीक्यूशन करेंगी, तब से वो डेट मानी जाएगी। और कब तक बाइंडिंग है, जब तक वो पीरियड टाइम पीरियड रहे, अगर एग्रीड है तो, और नहीं है तो 6 महीना जब से ये एग्जीक्यूशन हुआ होगा। और ये बाइंडिंग कंटिन्यू भी हो सकती है 6 महीने के आगे, अगर दोनों पार्टियां एग्री कर जाएं कि इसको हमको कंटिन्यू रखना है, और अगर कैंसिल करना है, टर्मिनेट करना है, तो 2 मंथ के प्रायर नोटिस देनी होती है आइदर ऑफ द पार्टी, ठीक है। आइदर ऑफ द पार्टी को 2 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ती। इट कंटिन्यूज। A Maharashtra amendment has inserted subsection 2A, which provide that not with understanding anything contained in this section where there is a recognized union, it is lawful to terminate the settlement after giving 2 months written notice to the employer। कि ये सेटलमेंट टॉक आपको नहीं रखनी कंटिन्यू, तो आप ये सारी चीजों को आप कैंसल करना चाहते हैं, मुझे नहीं रखना कंटिन्यू, आपको 2 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी, और 2 महीने की नोटिस देने के बाद आप इस सेटलमेंट से बाहर आ सकते हैं। आई बात समझ में? ये दोनों चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेटलमेंट इन्फोर्सिएबल है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट और द डेट डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, और जो भी फ्यूचर डेट है, या फिर 6 महीने तक, और उसके बाद उसको कंटिन्यू कर देना, यही इसका ऑपरेशन है। अगर नोटिस नहीं दी गई कि मुझे सेटलमेंट कंटिन्यू नहीं करना, और आप ये सेटलमेंट को कंटिन्यू नहीं करते विदाउट नोटिस, देन वो यूजलेस है। रीजन सामने वाले को बताओ तो। जैसे अभी मैं आपको लेबर लॉ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने टॉर्च शुरू कर दिया,
तो आपको बताऊं तो कि मैं टॉर्ट पढ़ा रहा हूं या लेबर पढ़ा रहा हूं, टॉर्ट के डेफिनेशन, टॉर्ट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपको तो यही लगेगा कि लेबर के कंटेक्स्ट में ही चल रहा है। तो प्रायर नोटिस देना जरूरी है ताकि सामने वाले बंदे को भी पता चल सके, ठीक है, सामने वाले बंदे को भी अपनी चीजों को बोलने का मौका दे हो। वन साइडेड डिसीजन इज नॉट गुड फॉर एन एडवोकेट एंड फॉर अ जुडिशियल ऑफिसर। मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार बोलता हूं, यू ऑल आर बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एडवोकेट का दूसरा नाम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोला जाता है। तो वन साइडेड अगर वहां पे आप कोई भी चीज करते हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है, और इस रॉन्ग को आपको मानना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेज आर अलाउड। कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे, जैसे केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने बोला आप जितना अमेंडमेंट करना चाहें कर दें, ठीक है, लेकिन जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप बदल नहीं सकते, राइट। वैसे ही यहां पर है कि आपका जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक आपका है कि यू शुड नॉट बी प्रेजुडाइज माइंड, यू हैव टू फॉलो दैट ऑडियल्टम पार्टम, और आपके डिसीजन दूसरे पार्टी को भी ध्यान में रख के लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस। वन साइडेड डिसीजन इज नॉट हेल्दी। तो विदाउट नोटिस अगर आप ये सेटलमेंट या जो भी है आपके बीच में उसको आप तोड़ते हैं तो ये इलीगल है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता, समझे। आपके पास जस्टिफिकेशन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर लॉ हमेशा अपने लाइन से चलता है, जस्टिफिकेशन से नहीं, ठीक है। और लॉ के अकॉर्डिंग यू हैव टू डू सम एक्शन, ठीक है, बट अप टू द बाउंड्री, उसके बाहर जाके नहीं। From the above provision, it is clear that the period of operation of settlement does not automatically come to an end in absence of requisite written notice. अगर आपने राइटिंग में नोटिस नहीं दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी तरफ से एंड जरूर कर दिया बट सामने वाले ने एंड नहीं किया। नोटिस देना जरूरी होता है। अगर आप नोटिस नहीं देंगे तो आपके सारे एक्शन नल एंड वॉइड कहलाते हैं। कोई इंसान है, आपने किसी को असाइन किया, वो आदमी अपना परफॉर्म कर रहा है, अब परफॉर्मेंस उसकी गलत जगह जा रही है, बट आपको नोटिस देना पड़ेगा और वो नोटिस प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए कि यस यू आर डूइंग रॉन्ग। आप जनरल टॉक में कर रहे हैं, ठीक है, जनरल टॉक में कर रहे हैं तो ये नोटिस आपके एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल तब है जब आप इसको करेंगे, तो रेक्टिफाइड करिए अपनी गलती को, अदरवाइज आपका ये एक्शन कंटिन्यू ही माना जाएगा। कोई भी गलत चीज कब तक गलत होती है, जब तक आप उसको रेक्टिफाइड नहीं करते, ठीक है। तो विदाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ योर एक्शन इट इज ट्रीटेड एज अ रॉन्ग। उसको आपको जस्टिफाई करना है तो उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा, वहां से निकाल के दूसरी जगह डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूएशन में चला जा रहा है। आई बात समझ में? वही यहाँ पर है, नोटिस ऑफ चेंज अगर आपको देना है, सेटलमेंट टॉक को खत्म करना है, नोटिस बदलनी है, या आपको वो सेटलमेंट खत्म करना है तो आपको नोटिस देनी। अगर आपने नोटिस नहीं दी, वन साइडेड आपने कर दिया, तो याद रखिए रिलेशन वन साइड तो बना नहीं था, तो टूटता भी वन साइड नहीं है, दोनों साइड इन्वॉल्व होते हैं। अब केयरफुल आपको होना पड़ता है कि कौन सा साइड यूज करना है, ठीक है। तो दैट इज योर कॉशन, बट विदाउट कोई नोटिस ऑटोमेटिकली ऑपरेशन बंद नहीं होता, याद रखिएगा। तो वो कंटिन्यूअस है एक साइड से, ओके। तो आप उसको प्रॉपर नोटिस, इतना काफी है इसके लिए। उसके बाद अवॉइड द पीरियड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है।
पीरियड ऑफ ऑपरेशन कब से और कब तक? अभी तक हमने देखा सेटलमेंट, अब हम आते हैं अवार्ड। अवार्ड ऑपरेट कब से होता है? पब्लिश करने के बाद 1 महीने के बाद वो इन्फोर्समेंट में आता है, राइट? कोई भी ट्राइब्यूनल ने अवार्ड पास किया, मैटर रिफर्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो वापस भेजा, वापस भेजने के बाद इस चीज को पब्लिश करती है गवर्नमेंट, ठीक है? वापस पब्लिकेशन के बाद 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के टाइम के बाद अब आप इसको ऑपरेशन पे ला सकते हैं। 1 महीने का टाइम क्यों दिया था? मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी को अपील करनी है तो वो विद इन 30 डेज होती है। लिमिटेशन एक्ट आपको फाइनल में मिलेगा, जहां पे आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी कि कब और कैसे इन सारी चीजों को आपको यूज करना है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 3, subject to the other provision of a section, an award remains in operation for a period of 1 year from the date on which award become enforceable under the act. Just a moment. जी, ठीक है? तो एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन, उसको हटा दीजिए अगर दिया होगा तो। अवार्ड रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ विच अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सेबल अंडर द एक्ट। 1 साल के अंदर अंदर इस अवार्ड को आपको ऑपरेशन पे लेना है, अगर नहीं लिया तो वो यूजलेस हो जाए। जो हिंदी में एक छोटी सी कहावत है, सांप मरने के बाद लाठी नहीं पीट सकते। तो कोई भी अवार्ड पास होने के बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर इसको ऑपरेशन में ले लेना। The provision is subject to the appropriate government to reduce or extend the period of operation. ठीक है? तो इस पीरियड ऑफ ऑपरेशन को आपको रिड्यूस भी करना है या एक्सटेंड करना है 1 साल से, तो ये आप अपने आप तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कर लेती है, क्योंकि ट्राइब्यूनल का पार्ट ये सारा का सारा आपका किसके थ्रू आता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है, ठीक है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करने के बाद ये सारी चीजों को आगे बढ़ाती है। तो अगर पीरियड ऑफ नोटिस है उसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी, ओके? चलिए उसके बाद द प्रोविजन रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अवार्ड do not apply any award which by its nature, terms or other circumstances does not impose after it has been given an effect to any continuing obligation on a party bound by the award. Means जो भी अवार्ड पास हुआ, ठीक है, जो भी अवार्ड पास हुआ है वो कब तक इम्पॉसिबल है? जब तक वो पीरियड ऑफ 1 year है, ठीक है? अगर वो इम्पॉसिबल या फिर उसके आगे कोई कंटिन्यूएशन है, डिपेंड ऑन द अवार्ड। देखिए हर एक अवार्ड अलग अलग होते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिस आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लेंट आपने पढ़ी है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवार्ड नहीं होता, क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस पे वो अवार्ड बदलते हैं, ओके? वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपके अवार्ड बदल जाते हैं। Now with understanding, not with understanding the expiry of operation of award, it be continues to be binding on a parties unless the period of 2 months has been elapsed from the date of notice given by the party
bound by the award to the other, intimating to terminate the award. टर्मिनेशन अगर आपको करना है इस अवार्ड का, ठीक है, तो टर्मिनेशन करने के लिए आपको सामने वाले पार्टी को भी नोटिस देना पड़ेगा. अपीलेट अथॉरिटी में अगर टर्मिनेट किया है तो अपीलेट अथॉरिटी भी उतना चांस देती है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेटअप चल रहा होता है प्रीवियस अवार्ड की वजह से, और जब उसको चेंज करना होता है तो फिर अप्रोप्रिएट नोटिस उसको देनी पड़ती है कि यस, ये अवार्ड जो आपका हुआ था इसको मैं सेटिस्फाइड करने जा रहा हूं. ओके, आगे. So no notice of termination has any effect unless it is given by the party representing the majority of a person bound by the award. अगर आपको उसको चैलेंज करना है, टर्मिनेशन करना है, ठीक है, तो टर्मिनेशन और ये सारी चीजें करने के लिए आपको मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि यूनियन के थ्रू ये चीजें चलती हैं. यूनियन रिप्रेजेंट करती है मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स को. MRTU में हम पढ़ेंगे, महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें हम ये आगे के प्रोविजन उसमें देखेंगे कि अप्रोप्रिएट यूनियन होने के बावजूद आपके पूरे अधिकार उस यूनियन को मिलते हैं आपके तरफ से लड़ने का, ठीक है. लेकिन उसके अलावा सपोज लगता है कि यूनियन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है तो ऐसे कंडीशन में आपके ग्रुप ऑफ मेजॉरिटी उस यूनियन से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको अपनी मेजॉरिटी ज्यादा दिखानी है उस यूनियन से ज्यादा, ठीक है, और उस अवार्ड को आप टर्मिनेट करा सकते हैं एज पर द सेक्शन 19 सबसेक्शन 7. ये है आपका ऑपरेशन ऑफ अवार्ड. ओके.